ہر کوئی ریلیجن یہ کہتا ہے کہ اپنی سوسائٹی کو آپ بچا کے رکھو، چاہے وہ ڈرگس ہو، چاہے وہ نیوڈیٹی ہو. کوئی ریلیجن آپ کو الاؤ نہیں کرتا کہ آپ مطلب نیوڈیٹی پھیلاؤ یا ڈرگس پھیلاؤ. کنٹینٹ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ریڈر ہے، آپ کا پڑھنے والا جو ہے، اس کی مطلب جو آئیڈیالوجی ہے، جو تھنکنگ ہے، وہ کھل سکے، وہ دیکھ سکے کہ دنیا کیا ہے. سو یہ رائٹرز کا، جو بھی رائٹر ہے، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایک اچھا کنٹینٹ دے. خوش آمدید ہے آپ سب کا جکی نیوز پوائنٹ کے اس خاص شمارے میں. وقتاً فوقتاً آپ تک جو ہے جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے ان نوجوانوں کو پہنچاتے ہیں جنہوں نے کچھ ایسا کام کیا ہوتا ہے جس وجہ سے انہوں نے اپنے علاقے کا نام روشن کیا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وادی کشمیر کا نام بھی روشن کیا ہوتا ہے. آج میرے ساتھ شریک گفتگو سہیل ابن شاہنواز، ضلع کلگام کے دور دراز علاقے سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے آج تک جو ہے 3 کتابیں لکھی ہے. اتنی کم عمر میں اتنا بڑا کمال کیا ہے سہیل ابن شاہنواز نے. ہم نے مناسب سمجھا کہ اس مؤثر کہانی کو آپ تک پہنچائیں گے، اور اس کہانی کو سننے کے بعد جو ہے آپ کے دماغ کے دریچے بھی کھل جائیں گے اور آپ بھی جو ہے سماج کے تئیں اچھے کام کرو گے. ہمارے مہمان خود اپنا تعارف دیں گے. سہیل ابن شاہنواز میں نے تو نام بتایا ہے. سہیل صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام میں. سب سے پہلے آغاز میں ناظرین کو اپنے حوالے سے خود ہی بتائیں. جی شکریہ. میرا نام سہیل ابن شاہنواز ہے، جیسے عامر صاحب نے آپ کو بتا ہی دیا. میں ڈسٹرکٹ کلگام کے کھلنور آباد علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں نے 3 کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جیسے عامر صاحب نے بتایا، دا گاڈ تھیوری آف یونیورس، اون دا وزڈم اینڈ دا سولجر. اور تینوں کتابیں الگ الگ فیلڈ سے ہیں. اون دا وزڈم مائنڈ فلاسفی پہ بیسڈ ہے. دا سولجر اباؤٹ سولجرز، وہ کتنا سیکریفائس کرتے ہیں اپنے نیشن کے لیے. اور دا گاڈ تھیوری آف یونیورس از بیسڈ آن فزکس. تو سہیل صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، چونکہ یہ ابتدائی مراحل جب آپ نے گزارے ہوگے، آپ نے مشکلاتوں کا سامنا کیا ہوگا، تو آپ کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے جاننا چاہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کب شوق ہوا لکھنے کا؟ جی دیکھیے، میں نے اپنی 10th جو ہے یہیں اپنے گاؤں سے ہی کی ہوئی ہے. یہاں پہ ایک پرائیویٹ سکول ہے، حنفیہ نورانی پبلک ہائی سکول، وہاں سے میں نے 10th کی ہوئی ہے. تو 10th میں تھوڑا تھوڑا لکھتا تھا. پوئٹری میں زیادہ لکھتا تھا، اور کچھ ڈرامہ واما لکھتا تھا. تو پھر میں نے ان کو پبلش نہیں کیا، بیکاز اتنی جانکاری نہیں تھی کہ بکس کو کیسے پبلش کرے، کیا کرے. سو دین 11th-12th کرنے کے بعد میرا مائنڈ جو ہے فزکس کی طرف مائل ہوا. دین آئی واز ورکنگ آن فزکس آفٹر 12th. سو اس کے ساتھ میں نے اپنی پہلی بک پبلش کی، اون دا وزڈم، جو بیسڈ ہے، میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہوا ہے ڈپریشن کو، اس پہ بیسڈ ہے. کیونکہ 11th-12th کے بعد میں لگ بھگ 1-2 مہینے تک ڈپریشن میں رہا تھا، بیکاز آئی واز ورکنگ آن فزکس. تو مجھے تھوڑی سی مطلب ڈپریشن کو تھوڑا سا فیس کرنا پڑا. سو جب میں ڈپریشن سے نکلا تو مجھے لگا وٹ آئی ایکسپیرینس، اس کو میں نے بک میں ڈالا. پھر میں نے کچھ پبلیکیشن ہاؤسز سے کانٹیکٹ کیا، تو دے گائیڈ می اینڈ آئی پبلش مائی فرسٹ بک. سو پھر میرا کام چلتا رہا فزکس کے بیسڈ. پھر میں نے اپنے ریسرچ پیپرز 1-2 سال 12th کے 1-2 سال بعد پبلش کیے. اور دین آئی پبلش. اسی فیز میں نے ایک اور بک پبلش کی، دا سولجرز، بیکاز اس ٹائم مطلب حالات ایسے نہیں تھے کشمیر میں. تو مجھے لگا کہ مطلب ان کی سٹوری آگے آنی چاہیے. جو لوگ ہمارے سولجرز کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کی سٹوری آگے آنی چاہیے. لیکن بک کے بعد جو میرا فزکس کا کام تھا، وہ میں نے پبلش کیا دا گاڈ تھیوری آف یونیورس میں. اور ایک بات یہاں پہ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اون دا وزڈم بک ہے، اس کی وجہ سے میں نے یہ انڈیا کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے یونیورسٹی آف کیلنٹن میں، ملیشیا میں، انڈیا کو. سو یہی سٹوری رہی ہے. تو سہیل صاحب، آپ سے جاننا چاہیں کہ چونکہ آپ نے ایک بڑا کام کیا ہے، خود ڈپریشن میں ملوث ہونے کے بعد کچھ اس طرح آپ نے لڑنا شروع کیا کہ آپ نے ڈپریشن پہ ایک کتاب ہی لکھی ہے، نوجوانوں تک پیغام پہنچایا ہے کہ آپ بھی اگر اس جوخم میں آ جاؤ گے، ڈپریشن میں آ جاؤ گے، تو آپ ڈپریشن سے کیسے باہر نکلو گے. اس کے لیے آپ بہت زیادہ پذیرائی ملنی چاہیے، اور ہم بھی آپ کی تعریفیں کرتے کرتے تھک نہیں جائیں گے. تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج تک جتنی بھی کتابیں لکھی ہے، مخصوص موضوعات کیا رہے آپ کی کتابوں میں؟
जी मेरा हमेशा था कि जी फिजिक्स के साथ मेरी जो रिलेशन है, बॉन्डिंग है, वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज आई लव फिजिक्स अलॉट। और उसके बावजूद मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं एक एनजीओ भी यहाँ पे अपनी बनाई हुई है, मैंने अपनी एनजीओ, मैं कुछ सोसाइटी को देना चाहता हूँ। मतलब मेरा एक ड्रीम है कि एक सोसाइटी ऐसे बिल्डअप हो कि अगर मेरे में कुछ अच्छा है, अगर गांव में कुछ खराबी है, हमारी सोसाइटी में कुछ खराबी है, वो मेरी वजह से ठीक हो। उससे मतलब मेरा वैल्यू जो है वो सोसाइटी में मतलब दिखना चाहिए कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। और मेरा जो एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो मेरा मेन फिजिक्स ही है। अगर हम जी। आज के दौर की बात करें, बहुत सारे नौजवान जो है कलमकार बन चुके हैं, लिखना शुरू करते हैं, पढ़ने से कासिर है लेकिन लिखना शुरू करते हैं। तो उन नौजवानों के लिए क्या पैगाम रहेगा जो पढ़ने से पहले ही लिखना शुरू करते हैं? जी देखिए, कश्मीर में मैंने परसों भी एक इंटरव्यू में ये बात की कि कश्मीर में जो एक ट्रेंड बनी हुई है कि हर कोई हर महीने एक नया नया राइटर आता है। देखिए, एक नॉर्मल कॉमन सी बात है, टाइम एक बुक, मतलब मैं यहाँ पे एक बात रखना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हम इंग्लिश कंट्रीज की बात करें, वहां पे लैंग्वेज इंग्लिश है, फिर वहां पे हर कोई राइटर होना चाहिए। लेकिन बुक का जो मेन मोटिव होता है कि वो आइडियोलॉजी क्या है, अगर लिखने वाला कोई है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसी की वजह से उसकी थिंकिंग के बेस्ड एक बुक फिर बनती है। लेकिन कश्मीर में अलग ही है कि यहाँ पे मुझे पैसे के लिए, मतलब पब्लिशिंग हाउस क्या काम करते हैं कि पैसे के लिए किसी भी ऑथर कुछ भी लिख देता है, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी होती हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या बुक में लिखा होता है। एक आप ही सोचिए, एक 10th का बच्चा मतलब क्या लिख सकता है अपनी बुक में, मतलब उसको उतनी लाइफ की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, मतलब आइडियोलॉजी बिल्डअप होनी चाहिए, तभी वो बुक लिख सकता है। लेकिन कश्मीर में अलग ही कुछ ट्रेंड्स चल रही है। मतलब मेरा एक ड्रीम था कि मैंने अब एक साल से मैंने कुछ लिखा नहीं है, बिकॉज मैं रॉकेटरी पे काम कर रहा था। मेरा एक ड्रीम था कि मैं उस रॉकेटरी के कॉन्सेप्ट को एक बुक में डालूं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो लिटरेचर को है, मतलब एक अलग तरीके से देखा जाता है कश्मीर में, एक मतलब रॉन्ग वे में लिया जाता है। मतलब मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त रहेगी, अगर कोई मतलब इस फील्ड से है, लिटरेचर फील्ड से, कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो कि बुक्स को पहले चेक किया जाए, क्या ये बुक पब्लिश हो सकती है या नहीं हो सकती। बिकॉज पढ़ने यहाँ पे लोगों को धोखा होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस हर कोई लिखता है कमेंट्स में, हर किसी को लिखना आता है, लेकिन मतलब सोसाइटी को देखिए। और एक बात मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, अवार्ड्स की बात मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ, मतलब इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं या बहुत सारे अवार्ड्स हैं, दे आर ओनली बेस्ड ऑन दे आर पेड अवार्ड्स। जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि कोई ऑथर, मैंने बहुत सारे ऑथर्स की बुक पढ़ी है कश्मीर में जो अच्छे अच्छे हैं, लेकिन उनकी बुक सामने नहीं आती, बिकॉज यहाँ पे क्या मसला है कि यहाँ पे जिनके पास पैसे हैं, जिन ऑथर्स के पास पैसे हैं, मतलब उनको घर वाले, मैं उनको सपोर्ट नहीं कहना चाहता, ये एक मतलब दूसरे आर्टिस्ट, मतलब दूसरे ऑथर ऑथर वो दब जाता है, जिसका काम अच्छा होता है वो फिर दब जाता है। सो इन चीजों पे मुझे लगता है जर्नलिज्म का खास ध्यान होना चाहिए कि किस ऑथर को सपोर्ट करना चाहिए, उसकी बुक्स पहले पढ़े, उसका फील्ड पहले पढ़े, फिर उनको सपोर्ट करे। तो सुहेल साहब, क्या रहेगा इन नौजवानों के लिए पैगाम जो है, खुसूसी पैगाम, जो पढ़ने से पहले लिखना शुरू करते हैं? मैंने पहले ही आगाज में बताया था, तो आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। जी देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, इंसान हर किसी को धोखा दे सकता है। अगर आपने देखिए, अगर आपने मतलब आप ऐसे ही फेम के लिए बुक पब्लिश करते हो, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि इलिटरेसी रेट ज्यादा है, सोशल मीडिया पे भी इलिटरेट पीपल ज्यादा है, तो हर कोई क्या करता है कि ये अप्रिसिएशन देता है। उससे क्या होता है कि वो जो ऑथर होता है या कोई भी आर्टिस्ट होता है, उसको क्या मिलता है कि पुशअप मिलता है, मैं कुछ हूँ। लेकिन उसको खुद पता होता है कि मैं क्या हूँ। मतलब अगर बंदा फेक है और सोसाइटी को धोखा देता है एक किस्म का, सो मुझे मुझे मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप खुद को धोखा मत दो, बिकॉज इंसान किसी को भी धोखा दे सकता है, खुद को धोखा मत दो और सोसाइटी को धोखा मत दो, बिकॉज आपकी वजह से एक रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे। सुहेल, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो है बहुत ही खूबसूरत 3 किताबें लिखी है, इनमें खूबसूरत पैगामात आपने लोगों तक पहुंचाए हैं। तो हर किसी शख्स का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, जिसे देखकर वो अपनी जिंदगी चलाता है, आगे बढ़ाता है। तो आपकी कोई इंस्पिरेशन है जिसको देखकर आप जो है ये किताबी सफर जारी रखे हुए हैं?
जी, किताबी सफ़र ऐसा था कि मैं पहले से ही बात करूँगा स्टार्टिंग से ही कैसे स्टार्ट हुआ कि जब मैं इंग्लिश बुक्स पढ़ता था तो उसमें पोएम्स होती थी या ड्रामास होते थे। मैं उस वक़्त ये सोचता था कि मेरी आइडियोलॉजी, मेरी थिंकिंग जो है मैं ये मतलब ड्रामा अपने दिमाग में क्रिएट कर सकता हूँ या मैं पोएट्री लिख सकता हूँ। देन आई स्टार्ट रीडिंग बुक्स। सो मुझे उनसे एक्सपीरियंस मिली और मैंने मतलब इंग्लिश टीचिंग क्लासेस लिए। मेरा एक टीचर था, उनसे क्लासेस लिए, ग्रामर अपना सेटअप किया अच्छे से। फिर मेरी आइडियोलॉजी है वो पहले से मैं मतलब कोई भी स्टोरी क्रिएट कर सकता था। सो वहां से मैंने एक फिर ओन द विजडम लाई। लेकिन जब फिजिक्स पे मेरा था कि हम कोचिंग कर रहे थे श्रीनगर में, हम कोचिंग कर रहे थे, वहां पे कुछ ग्रेविटी के क्वेश्चंस थे जिनमें मतलब मुझे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। देन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। फिर मुझे मतलब मैथमेटिक्स मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मदर ऑफ फिजिक्स है। तो मैंने वो बिल्डअप किया, मतलब वो बिल्डअप किया। फिर मैंने अपना एक पहला रिसर्च पेपर 1-2 साल पहले पब्लिश किया हुआ है। देन आई पब्लिश इन माई नेक्स्ट इन IJSR, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च। मेरा अभी चल रहा है कि मैं नेचर में पब्लिश करूं, वहां पे मेरा प्रीप्रिंट जो रिसर्च पेपर है वो पब्लिश हुआ है, लेकिन पूरा पेपर पब्लिश होगा इंशाल्लाह जल्दी, बिकॉज इट टेक्स टाइम। सो ऐसी मेरी स्टोरी रही। जी। और क्या सोचा है आपने मुस्तकबिल के हवाले से? मुस्तकबिल में आप क्या करने जा रहे हो? जी, मुस्तकबिल में मेरा अभी काम चल रहा है रॉकेटरी पे। एग्रीनाथ एरोस्पेस के साथ मेरा कोलैबोरेशन अभी चल रहा है। मेरा जो मेन चीज है कि यहाँ के यूथ की जो है ये व्यू है, ये चेंज करो। माइंड सेटअप है जो है ये चेंज करो। मतलब आई डोंट केयर व्हाट सोसाइटी थिंक्स अबाउट मी। मतलब मैंने जब मैं अपना शेयर ड्रीम करता हूँ, अपना एम किसी के साथ शेयर करता हूँ, वो कहता है कि यहाँ आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपको वो नहीं मिलेगा, यहाँ आपको ये नहीं मिलेगा। When I start building up a rocket, मेरे पापा ने खुद कहा कि मैं अपने रूम में बना रहा था पहले स्टार्टिंग में। तो पापा ने कहा क्या कर रहे हो ये उसने बोला कि शट अप डाउन, मतलब आपको ये मतलब इसको प्रपल करना है। मैंने बोला हाँ। देन ही टोल्ड मी कि ये नहीं, आप नहीं कर सकते। मतलब उसको लगता है बिकॉज यहाँ पे सबकी आइडियोलॉजी सिर्फ पापा नहीं, हर कोई सोचता था। देन जब मैंने उस पर एक मॉडिफिकेशन की, मैं उसको विंग्स को ऐसे बैंड कर रहा था, खुश हुए और कहा कि अब आप कर सकते हो। बिकॉज आप ये मत सोचो कि अगर पापा ने उस वक्त कहा होता कि आप नहीं कर सकते, अगर मैं वैसा बंदा नहीं हूं कि कोई मुझे नेगेटिव कमेंट करे मैं रुकूंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं। मेरा ड्रीम ये है कि हर कोई मतलब जिसके जो फिजिक्स के रिलेटेड बंदा कश्मीर में है, मतलब आई विल हेल्प हिम। मतलब मैंने फिजिक्स के रिलेटेड मतलब आई विजिट NIT। मैंने वहां पे बहुत सारे मतलब पापा मेरे साथ थे। आई टॉक विद द प्रोफेसर, मैंने उसको अपने पेपर्स दिखाए, अपनी बुक दिखाई। उसने रीड ही नहीं की। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि अगर कोई बंदा अच्छे पोस्ट में उसको लगता है कि इसकी हेल्प मैं क्यों करूं, मुझे ये लगता है इंसान को अपनी हेल्प खुद करनी चाहिए, खुद को पुशअप करना चाहिए, खुद को मोटिवेट रखना चाहिए। सो हाँ, आपने कहा था इंस्पिरेशन आपकी कौन है। देखिए फिजिक्स में मेरी इंस्पिरेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन है, इसाक न्यूटन है। और अब मुझे लगता है कि मतलब अभी के टाइम मुझे अपने आप में मतलब खुद की इंस्पिरेशन हूँ। मतलब मैं हर किसी काम को मतलब जो मैं चाहता हूँ उसको वो पहले पढ़ता हूँ, उस पर काम करता हूँ, फिर मैं वो करता हूँ, मैं रुकता नहीं हूँ। सुहेल साहब, आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे, मौजूदा सूरत हाल जब देख रहे हैं वादी कश्मीर की, तो राइटर्स अपना फरीजा अंजाम दे रहे, तो किस किस्म का कंटेंट उन्हें लोगों के सामने लाना चाहिए? किस चीज की अशद जरूरत है इस वक्त? जी देखिए, मैं अगर मेजोरिटी की बात करूं कश्मीर है, मतलब हर कोई रिलीजन ये कहता है कि अपनी सोसाइटी को आप बचा के रखो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो न्यूडिटी हो। कोई रिलीजन आपको अलाउ नहीं करता कि आप मतलब न्यूडिटी फैलाओ या ड्रग्स फैलाओ। हर कोई बंदा, मैंने देखा हुआ है कि सोशल मीडिया पे हर कोई बंदा आता है, बात कर लेता है कि मुझे मतलब ड्रग्स को मतलब यूथ को ड्रग्स से बचाना है या न्यूडिटी को कम करना है, लेकिन इस पे काम कोई नहीं करता। कि मैंने मतलब बहुत सारे राइटर्स का देखा है कि वो ब्लाउड मतलब पता नहीं क्या क्या लिखते हैं ब्लाउड के बारे में। अभी जो नीड है सोसाइटी की वो लिखना चाहिए। एंड वी आर अवर रिलीजन इज इस्लाम, हमें वो देखना चाहिए कि हमारा पढ़ने वाला मतलब कोई मेरी वजह से मतलब उसकी आइडियोलॉजी थिंकिंग है वो रॉन्ग डेवलप ना हो। सो ये राइटर्स का जो भी राइटर है उसको उसका ये फर्ज बनता है कि एक अच्छा कंटेंट दे। चलिए सुहेल साहब, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन मोहतरम, हमारे साथ बात कर रहे थे जनूबी कश्मीर के
ضلع کلگام کے دور دراز علاقہ کل نور آباد سے تعلق رکھنے والے سہیل ابن شاہنواز، جنہوں نے آج تک جو ہے کم عمر میں ہی 3 کتابیں شائع کی ہے اور مزید جو ہے پروجیکٹ پہ سہیل ابن شاہنواز کام کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا کہ راکٹری پروجیکٹ پہ سہیل ابن شاہنواز کام کر رہے ہیں۔ ہم سب کو ایسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ یہ حوصلہ مند نوجوان وادی کشمیر کا نام روشن کریں گے۔ سہیل ابن شاہنواز نے تمام ان نوجوانوں کے لیے پیغام پہنچایا ہے جو پڑھنے سے پہلے لکھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔